आप सभी को मध्याह्नकालीन प्रणाम। आज की कक्षा की शुभारंभ ओमकार और गायत्री मंत्र के सस्वर उच्चारण के साथ। कमर गर्दन सीधे, सावधान, सस्वर प्रार्थना। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Good afternoon to one and all. Dear friends, we are discussing on measure of central tendencies, and we have learned the procedure of computation, especially related to mean and the median. And we could discuss the computations of mean and median in individual data, discrete data, and group data. Today we'll be focused more on the concept and computation of mode, especially in group data. And lastly, we'll try to sum up the properties, merits and demerits of the all three measures of central tendency. And we'll make the concise sum of the measure of central tendency. Let me deliberate more systematically and scientifically with slides here. Dr. Archana, could you turn on your video? And once you please make sure I'm visible and audible to everyone. Yes, all right. Yes, okay. So, dear friends, as I told you earlier, mode is the most fashionable and frequent value of the data set. And the data set, the data point having highest frequency is commonly known as mode. And the mode may be one and unique, mode may be two for a given distribution. And a mode is unlike the median and mean, because mean and median is always unique and single for a data set, but mode may be two, right? जरूरी नहीं है कि मोड किसी भी डेटा सेट के लिए हमेशा मीन और मीडियन की तरह एक ही हो, ये दो भी हो सकते हैं। और अगर क्रॉक्सटन अकाउडेन की परिभाषा के हिसाब से हम मोड को समझने की कोशिश करते हैं, तो मोड वास्तव में एक the mode of distribution is the value at the point arm with the item tend to most heavily concentrated. इस बात को मैं दूसरे अंदाज से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं पढ़ाया है, लेकिन आपने इस तरह के कर्व को जरूर देखा होगा एनपीसी, यानी दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इस तरह के जो बेल शेप्ड कर्व होता है, इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो बेल शेप्ड कर्व में हमेशा मीन, मोड और मीडियन तीनों बराबर होते हैं। यानी ये कर्व का जो हाईएस्ट पीक है, ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को बताता है। यानी द पीक ऑफ द कर्व, दिस पीक always denotes the highest frequency, and the varied value, I have to say the data point associated with this peak of the curve is called the mode. This is mode. So from the perspective of the normal distribution, mode is the data point having the highest frequency again. And if we look at the model value in the normal distribution, it is most peaked one.
So let me share how to compute the mode in case of individual and discrete frequency distributions. Let's say this is the discrete frequency distribution. Just look at here. Here this data set is beginning from 15, 15, 18, 18, 18, 20, 22, 24, 24, 24, 26, 27. So let's say how many data points are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Here the number of total data points is equal to 11. If you look at the trend of this data set, it is arranged in ascending order. 15 is the smallest value and 26 is the largest value. So it is perfectly arranged in ascending order. So let us look at the most fashionable value. I mean the data point having the highest frequency. That means the data point that has come more times. Say 15 has come once, 18 has come thrice, and 20 has come once, 22 has come once, 24 has come thrice, 26 has come twice. So if we look at here, the two data points, 18 has come 3 times and 24 has 3 times. So for this data set, we have two modes, 18 and 24. As I told you earlier, mode may not be unique for a data set. It may be two. Okay, just to look at here, the 18 and 24, both data points are having the same frequency 3 and 3. So for this data set, for this individual frequency distribution, the model values will be 18 and 24. So I think you understood the procedure, how to compute the mode in case of the individual series. Let me move ahead and discuss about the computation of mode in case of the group data. I mean in the continuous frequency distribution. Just to look at here, this is the formula to compute the mode in case of the grouped data. I mean the continuous frequency distribution. Mode is equal to lower limit of the model class plus and frequency of the model class minus frequency of the class following the model class. And here, so no, F1 stands for the frequency of the preceding class of the model class, and F2 stands for the frequency of the succeeding class of the model class. यहाँ पे मैं आपको और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ. Mode is equal to L. L stands for the lower limit of the model class is equal to plus NAF. FN stands for the frequency of the model class. F1 का मतलब होता है मॉडल क्लास से इमीडिएट छोटे क्लास की फ्रीक्वेंसी. इसी तरह से F2 की मतलब होती है यहाँ पे F2 का मतलब होता है मॉडल क्लास से इमीडिएट बड़े क्लास की फ्रीक्वेंसी. दोबारा समझा रहा हूँ, Fn का मतलब मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F1 का मतलब मॉडल क्लास से इमीडिएट छोटे क्लास की फ्रीक्वेंसी, F2 का मतलब मॉडल क्लास से इमीडिएट बड़े क्लास की फ्रीक्वेंसी. एज का मतलब होता है size of the class interval of the model class. So model class let's say 40 to 50 है, तो इसमें L is equal to 40 होगा, और यहाँ पे S का मतलब 10 होगा. If the model class is 40 to 50, here the size of class interval will be 10 and lower limit is equal to 40. So I think you understood the point. L is the lower class limit of the model class. Fn is the frequency of the model class, and the F1 is the frequency of the class before the model class. I mean the immediate smaller class. F2 is the frequency of the immediate larger class, and of course H is the size of
the class interval of the model class. अब आपको ये फॉर्मूला में जो सिंबल्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग पता चल गया है। हम आगे चलते हैं और एक ग्रुप डेटा को लेते हैं और उसमें मोड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट मोड इज इक्वल टू, जो आपकी फॉर्मूला है वो है L प्लस Fn माइनस F1 बाय Fn माइनस F1 माइनस F2 टाइम्स H. Say how to identify the model class, how to locate the model class. To locate the model class, first you have to look at the frequency. Just you look at here, and the class having the highest frequency is called the model class. Say 7, 6, 4, 2. If you look at the trend of the all frequencies here, 8 is the highest frequency, and the class related to the highest frequency 8 is 16 to 18. So here the term L is 16. L stands for the lowest class of the lower limit of the model class. So 16 is the L, and again Fn is the frequency of the model class. So this is okay. Let me erase this. Okay, just 1 minute. Okay, so okay. Just 1 minute, wait. All right. So Fn is this is Fn, and Fn is the frequency of the model class, and F1 is the frequency of the immediate smaller class of the model class. This is F1, and F2 is the frequency of the immediate larger class. This is the immediate larger class. This is F2, and H stands for the size of the model class. So look at here, the size of the model class. This data is not continuous. This is in inclusive form. To make it continuous, you have to make it exclusive. And the concept of the inclusive and exclusive has been already discussed. So to make it exclusive, you have to subtract 0.5 from the lower limit. Then it will be 15.5. And you have to 8.5 to the upper limit. So it will be 18.5. So in fact, if you make this distribution continuous, the lower limit of the model class will be 15.5 and the upper limit will be 18.5. So just to look at here, L is 15.5, Fn is 8, F1 is 2, and again F2 is 2. And the size of the model class 15.5 to 18.5. So this is 3. And the size of the model class is 3. So I think you understood the symbols, their meaning and their values, particularly in the
in this example. So let me move ahead. Erase. Okay, so let me to the next slide. And just to look at here, this values has been substituted. L is equal to, no, it was not 10. Okay, let me back. No, it's wrong. Model class is 16.8. Let me compute here. Let me compute here myself, right? Okay, so mode is equal to L plus Fn minus F1 by Fn minus F1 minus F2 times H. So L is equal to here. This is the model class, and this is 15.5 plus Fn is equal to 8, and F1 is equal to, this is 2, and Fn is equal to 8, F1 is equal to 2 minus again F2 is equal to 1, and the size of the model class 15.5 to 18.5, so it becomes 3. So this is equal to 15.5 plus 8 minus 2, 6, 8 minus 3, it becomes 5 times 3. So you computed yourself 15.5 plus 18 divided by 5 is equal to, I think it will be 3.6, and it will be 0.1. I have to say 19.1. Mode is equal to 19.1. So this is the procedure of computing mode in case of the group data. I think you understood this. I am not so habituated to write on the screen by using this Zoom pen, but still I tried. I think you understood my writing and the way of discussing the computation. So let me erase it and move ahead. यहाँ पे ये स्लाइड में थोड़ी मिस्टेक है, तो मैं इसको स्किप करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ. ओके, सो अब हम बात करते हैं कि मोड के फायदे क्या है. व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द मोड? ओके, मोड इज readily comprehensible and easily calculated. Yes, it is very easy to interpret the meaning of the mode, and it is also quite easy to compute it, both in case of discrete and grouped frequency distribution. Yes, it is the best representative of the data, and it is not affected by extreme values, because the formula for the computation of mode does not contain the extreme values. So mode is not affected by the extreme values like mean.
द वैल्यू ऑफ मोड कैन ऑल्सो बी डिटरमिन ग्राफिकली। यस, मैंने आपको एक बात समझाया था कि मोड को हम ग्राफिकली भी कंप्यूट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। Just 1 minute. जैसे हम किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ बना लें और इसमें से हम आसानी से मोड अनुमान लगा सकते हैं, यानी जो वैल्यू सबसे पीक में है, एक कर्व के जो पीक में है, इसी से संबंधित वैल्यू एक्स एक्सिस में मोड होगा। से लुक एट हियर, इफ यू लुक एट दिस कर्व, दिस इज द पीक। इस पीक से आपको एक वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस में ड्रॉ करनी है, और जहां पे ये वर्टिकल लाइन एक्स एक्सिस को टच करता है, यही वैल्यू मोड होगा। तो इस तरह से मोड को हम ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं, फॉर्मूला के बिना यूज किए। केवल ग्राफ बना ले हम, उसके एक एनपीसी टाइप के ग्राफ बना ले, तो उसके आधार पे हम मोड को बिना फॉर्मूला यूज करे ग्राफ के हिसाब से भी कंप्यूट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया। इट्स वेरी सिंपल। इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो कर्व का पिक है, उसको पहले आपको लोकेट करना है, फिर उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है एक्स एक्सिस में। जहां वो परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को टच करता है, वही उसका मॉडल वैल्यू है। तो आई थिंक you are clear to locate the mode value graphically without using the formula. Okay, that's all about. Let me move ahead. Okay, yes, if we look at the demerits of the mode, it is not based on all observations. Yes, it's right. Just for the computation of mode, we use the information regarding model class and its preceding and succeeding class. It does not use the overall values of a data set. It is not capable of further mathematical manipulation. Yes, mode को हम आगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं करते हैं। जैसे मीन का यूज होता है स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए, कोरिलेशन में, रिग्रेशन में, उस तरह से मोड का फर्दर मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज नहीं होता। चॉइस ऑफ ग्रुपिंग हैज ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द वैल्यू ऑफ मोड। यस, सो दिस आर सम ऑफ द डिमेरिट्स ऑफ द मॉडल वैल्यू। इसी तरह से हम मीडियन के फायदे को एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं। मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड ऑन ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस। यस, हम मीडियन किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में निकाल सकते हैं। मीडियन कैन बी अंडरस्टूड इवन बाय कॉमन पीपल। यस, मीडियन इज द जस्ट पार्टीशन वैल्यू दैट डिवाइड्स द डाटा सेट इनटू टू हाफ्स। यानी किसी भी डेटा सेट को दो बराबर भाग में जो वैल्यू डिवाइड करता है, उसी को हम मीडियन कहते हैं। So its meaning is quite understandable and quite easy to interpret. Median can be ascertained even with extreme items. और अगर किसी डेटा सेट में एक्सट्रीम स्कोर हैं, तो भी हम मीडियन को आसानी से निकाल सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, इसका मापन कर सकते हैं। और मीडियन को भी हम ग्राफिकली लोकेट कर सकते हैं, जैसे हमने मोड को किया, उसी हिसाब से मीडियन का भी ग्राफिकल कंप्यूटेशन और आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। इट इज मोस्ट यूजफुल डीलिंग विद क्वालिटेटिव डेटा। यस, मीडियन का यूज हम बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस में यूज करते हैं। यानी मोड का अधिकांश प्रयोग क्वालिटेटिव डेटा के एनालिसिस में होता है। क्वालिटेटिव डेटा के से संबंधित हाइपोथेसिस टेस्टिंग में इसका यूज होता है। आगे मैं आपको समझाऊंगा। जब हम पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पे एक टेस्ट मीडियन भी होता है, मीडियन टेस्ट। सो लेट मी रिपीट वंस मोर, द यूज ऑफ द मीडियन इज मोस्टली मेड इन केस ऑफ द
analysis of qualitative data. So these are the some advantages of the median. Let me move ahead and talk about its disadvantage. If you look at the disadvantage of the median, it is not based on all the values. मैंने आपको ये बताया है, दोनों अवस्था में बता दिया। तो मीडियन का जो आकलन है, गणना है, किसी भी डेटा सेट के सभी डेटा पॉइंट्स में आधारित नहीं होता, और इसी तरह से मीडियन को हम आगे मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादा यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे मीन का यूज होता है वैसा मीडियन का यूज नहीं हो पाता। और अगर हम सैम्पलिंग में फ्लक्चुएशन है तो मीडियन वैल्यू में काफ़ी अंतर आ सकता है। In case of even number of values, it may not the value from the data. Yes, अगर frequency distribution discrete है या individual है, उसमें number of observation items अगर even है, मान लीजिए n is equal to 10 है, तो ऐसे अवस्था में जो मीडियन वैल्यू होता है वो मीडियन वैल्यू एग्जैक्टली डेटा सेट का वैल्यू नहीं होता। वहां पे हमें दो वैल्यू की एवरेज निकालनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मीडियन इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो मान लीजिए n की वैल्यू अगर 10 होगी, इवन होगा, तो हमेशा n प्लस 1/2 5.5, 6.5 या 7.5 हमेशा ही ऐसा आएगा। तो ऐसे अवस्था में जो मीडियन वैल्यू होगा तो एग्जैक्टली जो डेटा सेट में जो डेटा पॉइंट है वो नहीं होगा, उसमें हमें एवरेज निकालना होगा। दैट इज द मीनिंग। सो दिस आर द सम डिसएडवांटेज ऑफ द मीडियन। इसी तरह से मैं थोड़ी लास्ट में मोड की बात कर चुका, मोड की बात हो चुका है, मीन की बात मैं कर लेता हूँ। मीन हमेशा सभी डेटा पॉइंट्स में निर्भर करता है, और मीन का यूज आगे के जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस है, ट्रीटमेंट है, उसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में, एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस में, रिग्रेशन में, और इसी तरह से कोरिलेशन में मीन का यूज होता ही है। सो मीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में से एक ऐसा वैल्यू है जिसका अधिकांश फर्दर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज किया जाता है। अगर किसी डेटा सेट में आउटलायर्स हैं और एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो मीन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है। ये मैंने आपको मीन पढ़ाते समय भी बता दिया था। और मोस्टली मीन का आकलन और मापन, मीन की गणना हम रेशियो स्केल डेटा में करते हैं। I think I have discussed about the levels of measurement. There are 4 scales of measurement, and the highest level of measurement is called the ratio scale. This is exact measurement, and the ratio scale data always contains the real zero. तो मीन की गणना, मीन का कंप्यूटेशन रेशियो स्केल डेटा में किया जाता है, और इंटरवल में भी किया जाता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, और इसके बाद इंटरवल और रेशियो। ये 4 तरह के लेवल्स ऑफ मेजरमेंट होते हैं। तो जहाँ पे डेटा का लेवल इंटरवल और रेशियो लेवल का है, वहाँ पे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के रूप में मीन को निकालते हैं। अगर ऐसी स्थिति में मीन निकाला जा सकता है, मीन का वैल्यू मीनिंगफुल होता है। So these are the some properties of the mean. Mean is always based on the all data points. It is, greatly affected by the extreme scores, and it is widely used in further statistical analysis, and it is mostly computed in case of interval and ratio data. Let's talk about the relationship between measures of central tendency. आपको मैं यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझाता हूँ। देख लीजिए, ये
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे आप बेल शेप्ड कर्व देख रहे हैं। अगर बीच में से आप कैंची से इसको काटेंगे और इसके दो टुकड़े को एक आपस में सुप्रीम पोज करेंगे तो एग्जैक्टली मैच होगा। सो दिस सिमेट्रिकल कर्व इज कॉल्ड द कर्व ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड होता है। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमेशा जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज के 3 मेजर्स हैं ये बराबर होते हैं। अगर डेटा पॉजिटिवली स्क्यूड है, जैसे आप यहाँ पे देखिए ऐसे एक्स है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये ग्राफ है, तो आप देखिए दिस ग्राफ इज पॉजिटिवली स्क्यूड। जहां पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड होता है तो वहां पे हमेशा मीडियन से ज्यादा होता है। अगर डेटा सेट नेगेटिवली स्क्यूड है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं स्क्यूड है, तो ऐसे अवस्था में हमेशा मीडियन से छोटा होता है, MD। So let me sum up here. If data is positively skewed, in such case mean is greater than median. If data is negatively skewed like this, mean is always smaller than median. If the frequency distribution is normal, then mean, mode and median all are equal to each other. तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सामान्य है तो मीन, मोड, मीडियन तीनों की वैल्यू बराबर होती है। अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन की वैल्यू मीडियन से ज्यादा होती है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है तो मीन की वैल्यू मीडियन से कम होती है। इस तरह से हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के कॉन्सेप्ट, कंप्यूटेशन एंड एप्लीकेशन तीनों चीज के बारे में चर्चा करी। और वास्तव में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसी भी रॉ डेटा को एक फिगर में सम अप करके एक्सप्रेस करने की तरीका है। इसमें 3 मेजर से हैं, एक मीन है, दूसरा मोड है, तीसरा मीडियन है। मीन का मतलब एवरेज होता है, मोड का मतलब मोस्ट फैशनेबल वैल्यू होता है और मीडियन का मतलब सेंट्रल पार्टीशन वैल्यू होता है। तो इस तरह से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपके पास मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से संबंधित कोई सवाल हो, बेसिकली कॉन्सेप्ट, कंप्यूटेशन और एप्लीकेशन से संबंधित, तो आप कर सकते हैं। मैं स्लाइड शेयर को यहीं पे रोकता हूं और आपसे क्वेश्चंस इनवाइट करता हूं। Please raise your hand to ask questions so that I'll unmute separately to inhibit the possible noise in the interface. वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। This is question answer session. Everybody, please turn on your videos. सभी लोग वीडियो ऑन कर लीजिए।
राहुल, पालक, साक्षी, अपूर्वा, अनुसुईया। ओके, कुछ सवाल पूछनी है आपको या मैं पूछूं? निधि, यस सर। बताइए। यस, डॉक्टर निधि। यस सर। बताइए, कुछ क्वेश्चन करिए। डू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू। यस सर। ग्रुप डेटा में मोड निकालने की फॉर्मूला बताइए जो हमने अभी डिस्कस किया था। सर L प्लस FN माइनस F1 डिवाइडेड बाय FN माइनस F1 प्लस FN माइनस F2 मल्टीप्लाई H। वेरी गुड, वेल डन। और वहां पे F2 का मतलब क्या होता है? सर मॉडल क्लास के जो इमीडिएट की लार्जेस्ट वैल्यू होती है। वेल डन, वेरी गुड। स्मृति, डॉक्टर स्मृति। डॉक्टर स्मृति, माइक्रोफोन ऑन म्यूट कर लीजिए। ओके, FN का मतलब क्या होता है? FN सर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। वेरी गुड, वेल डन। और H का मतलब? साइज ऑफ द मॉडल क्लास। Size of the model class. Very good. So what is difference between inclusive and exclusive class intervals? सर इंक्लूसिव में जो हम सेट्स इंक्लूड करेंगे और एक्सक्लूड में जो एक्सक्लूड करेंगे। I think it's not so clear. How can we differentiate the inclusive and exclusive class intervals? So I don't know. Don't know. So you have just joined the class today? Yes sir. Have you been attending the class regularly or just joined today? Yes sir, attending regularly. Regularly. तो ये इसकी तो चीज डिस्कशन हुई थी, तो आपके बीच में कहीं छूट गई होगी क्लास। हाँ, तो मैं आगे पूछता हूँ डॉक्टर चंद्रमोहन। यस सर। हाँ, ये बताइए कि ये इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव के बीच में क्या अंतर है? किसको हम सर जो इंक्लूसिव होता है सर, उसमें जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है सर, वो दोनों इंक्लूड होती है, और एक्सक्लूड में सर जो लोअर लिमिट है वो इंक्लूड होती है और जो अपर लिमिट है वो एक्सक्लूड हो जाती है। डॉक्टर स्मृति, आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यानी जिस क्लास इंटरवल में फ्रीक्वेंसी काउंट करते समय लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों कंसीडर किया जाता है एक ही क्लास में, उसको हम इंक्लूसिव कहते हैं, क्योंकि उसमें हम लोअर और अपर दोनों कंसीडर कर रहे हैं। किसी भी डेटा में फ्रीक्वेंसी काउंट करते समय लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों अगर वही क्लास में काउंट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंक्लूसिव। अगर लोअर लिमिट उसमें कंसीडर हो रहा है लेकिन अपर उससे एक्सक्लूड हो रहा है, यानी दूसरे क्लास में कंसीडर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सक्लूसिव। लेकिन माइंड वन थिंग, जो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होगा वही कंटिन्यूअस होगा। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल डिस्क्रीट होता है। अगर उसके आप ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ ब्रेक होगा। जैसे अभी हमारी क्या थी केस? 14 to 18 ऐसा था ना, 14 to 18, फिर आगे क्या था? 19 to
21, तो 14 to 18, 19 to 21, अगर कोई वैल्यू 18 और 19 के बीच में हो तब वहां तो इसके लिए जगह नहीं है ना। 14 to 18, फिर 19 to 21, अगर कोई वैल्यू 18 और 21 के बीच में आए तब there is no space. So the inclusive class interval means discrete, exclusive means continuous. तो जब भी आप मोड निकाले, मीडियन निकाले, तो अगर डेटा सेट इंक्लूसिव दिया है तो पहले उसको एक्सक्लूसिव बनाएं। बिफोर कंप्यूटिंग मोड एंड मीडियन, if the provided data set is inclusive, first make sure to make it exclusive. कैसे एक्सक्लूसिव बनाएंगे? किसी भी दो क्लास इंटरवल के अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में डिफरेंस निकालिए, 2 से डिवाइड करिए, जितना आता है वो सभी क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट से घटाइए, अपर से जोड़िए, तो हो जाता है। जैसे हमने अभी किया था 15 में हमारा क्या था अभी, हमारा जो केस कितना था मीन में, आपने कॉपी में लिखा होगा, मुझे तो याद नहीं है, हमने किया था ना, यानी 16 से घटाया था, 16 से 0.5 घटाया था तो 15.5 बना था, फिर हमने 18 में जोड़ा था तो कितना बना था, 18.5 बना था। तो इस तरह से हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाएंगे, तब जाके मीडियन और मोड निकालेंगे। ओके, लेट मी आस्क डॉक्टर साक्षी। यस यस सर। ये जो मीन, मोड और मीडियन, जो 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, इसमें से कौन सा मेजर एक्सट्रीमी वैल्यू से अधिक प्रभावित होता है? सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। जो तीन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी 3 है ना, मीन, यस सर, मीन, मोड, मीडियन। इन 3 में से कौन सा एक्सट्रीमी स्कोर से ज्यादा प्रभावित होता है? सर मोड। आर यू वेरी श्योर? यस सर। डॉक्टर प्रतिमा, साक्षी जी कह रही है ये सही है, आपको क्या लगता है डॉक्टर प्रतिमा? इनका तो माइक्रोफोन ही नहीं दिख रहा है। डॉक्टर प्रतिमा, ये तो किससे जुड़ी हुई है? आपको तो दिख भी नहीं रहा है कुछ, माइक्रोफोन ही नहीं दिख रहा है। एनीवे, डॉक्टर पालक, यस सर। यस सर मीन होगा इसका आंसर, जो एक्सट्रीम वैल्यूज। यस, मीन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम स्कोर। क्यों? रीजन दीजिए डॉक्टर पालक। जी सर। राइट आंसर, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? सर मीन बिकॉज जब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे और उसका मीन होता है कि हम उसकी वो लेंगे। Why mean is highly affected by extreme scores, unlike mode and median? सर एग्जैक्टली आंसर नहीं पता। नो इशू। इसका आंसर कौन दे सकता है? हैंड रेज करिए। इसका करेक्ट आंसर कौन दे सकता है? ही और शी विल बी चॉकलेट विनर ऑफ दिस क्लास। कोई बात नहीं सर, आप झूठी मुट्ठी की चॉकलेट की बात कर रहे हो, ऐसा मत सोचिए। हम चॉकलेट लेके रख लेंगे, जब हम मिलेंगे तो आपका ऑफलाइन थोक में दे देंगे। आई विल नोट द नेम ऑफ चॉकलेट विनर in my each class. Okay, who is enthusiastic to give the correct answer? Smriti, Nidhi,
डॉक्टर विनोद बताइए। सर क्योंकि इसमें एवरेज वैल्यू निकालनी होती है, तो जो अगर हाँ फिर ऑन करिए माइक्रोफोन, आपने म्यूट कर लिया। डॉक्टर विनोद, यस आप सही बता रहे थे, बोलिए। ज्यादा होगी तो वो एवरेज पे फर्क पड़ेगा, क्योंकि इसको निकालते हैं सम, सारा सम करके उसको डिवाइडेड बाय जितने नंबर होंगे उससे करेंगे। एग्जैक्टली जब हम मीन निकालते हैं तो सभी स्कोर्स का यूज होता है। अगर हम मीडियन निकालते हैं तो केवल मीडियन क्लास और उसके आगे पीछे की 2 क्लास की इंफॉर्मेशन यूज होती है। इसीलिए मोड में भी ऐसा ही होता है, मोड में भी मॉडल क्लास प्लस उसके आगे पीछे की फ्रीक्वेंसी यूज होती है। मतलब ये दोनों जो मीडियन और मोड है ये कुछ डेटा के कुछ पार्ट से रिलेटेड होता है। इनका जो कंप्यूटेशन है कुछ डेटा के पार्ट से ही संबंधित होता है। लेकिन मीन ही एक ऐसा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जो सभी वैल्यूज में निर्भर करता है। हम उसमें एक्सट्रीमी वैल्यू को भी जोड़ते हैं, इसीलिए ये सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर। और डॉक्टर अर्चना, आर यू देयर? ये डॉक्टर विनोद का नाम नोट कर लेना, इज द चॉकलेट विनर ऑफ दिस क्लास टुडे। यस, यू डिजर्व फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू। वेल डन। तो आज की क्लास हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड से करने से पहले मैं आपको अब आपकी जो असाइनमेंट है उसको करने की फिर रिमाइंडर देना चाहता हूँ। मैंने आपको बोला था आप अपनी SpO2, ब्लड प्रेशर, बॉडी मास इंडेक्स और वेट से संबंधित डेटा ले लें अपने क्लासमेट्स की, ग्रुप में एक दूसरे को शेयर कर लें। मैं एज नहीं डाल रहा इसमें क्योंकि एज बताने में लोगों को दिक्कत होती है इन दिनों, तो आई एम नॉट इंक्लूडिंग एज एज सच, बट आई थिंक देयर इज नो हेजिटेशन। डॉक्टर को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। SpO2, बॉडी मास इंडेक्स, ब्लड प्रेशर और वेट से संबंधित आप डाटा शेयर करें और उसके उस डेटा से मीन भी निकालें, मोड भी निकालें और मीडियन भी निकालें। और ये डेटा को आप इंडिविजुअल फॉर्म में, डिस्क्रीट फॉर्म में, कंटिन्यूस फॉर्म में, तीनों फॉर्म में प्रेजेंट करें। और तीनों फॉर्म में प्रेजेंट करके तीनों तरह की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आप मीन निकालिए, मीडियन निकालिए, मोड निकालिए और उसको आपको प्रेजेंट करना है। ठीक है, अगर आप इसका प्रेजेंटेशन कल नहीं करेंगे तो मैं आपको अगला यूनिट नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसका मीनिंग ये होगा कि आपने प्रैक्टिकली समझा नहीं। यहाँ पे हमारा उद्देश्य मीन मोड किताब के सवालों से निकाल लेना, एग्जाम पास कर लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि रियल ग्राउंड में जाके डेटा को जनरेट करना और उस डेटा को मैनिपुलेट करके आवश्यकता के हिसाब से अलग अलग स्टैटिस्टिकल मेजर का कंपटीशन करना। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस टीचिंग लर्निंग। तो अब ये कल कौन प्रेजेंट करेगा ये मैं कोई निश्चित नहीं कर रहा। आई विल गो फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। वो कोई भी हो सकता है, पल्लवी हो सकती है, निधि हो सकती है, साक्षी जी हो सकती है, डॉक्टर चंद्रमोहन जी हो सकते हैं, एनीवन में भी। आई विल गो फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मीनिंग तो पता होगा ना, रिसर्च तो पढ़ ली होगी इतना। यस, कोई भी हो सकता है। मेक श्योर टू गेट प्रिपेयर टुमारो, generate the data of your classmates and compute the 3 measures of central tendency and make sure yourself for the presentation। और आज की बात यहीं पे समाप्त होती है। एक बार आप वीडियो ऑन कर लीजिए, मैं आपके टेंडेंसी की शॉट ले लेता हूँ। कितने लोग हैं? 13 लोग हैं। डॉक्टर साक्षी, अर्चना, ये आपने उसमें भी अटेंडेंस मेंटेन करते जाना, आप लोग भी शॉट ले लेना। ठीक है, थैंक यू। आज की बात समाप्त, फिर हम कल मिलेंगे नया उत्साह और विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम।